Thank you very much. Now, earlier, what used to happen? Only two participants used to be there. Finding of time, it is very easy. If they are at the starting point, you have to get the LCM. If you want to meet at the starting point, you have to get the LCM. Second thing is, at general point, if you meet is needed, so distance divided by relative velocity, that I told you. Distance divided by relative velocity. Suppose if they are in the same direction, minus; if they are in the opposite direction, plus. Now the question arises, if three people are there or four people are there, where three people, four people are taking participation, then how you are going to find this problem? Last time I told you, but in hurry. Okay, now three friends A, B, C starts walking around a circular path in the same direction whose circumference is 36 kilometer. So today I will complete this one and start the new topic, percentage and ratio and proportion. Now, three friends are there. So all the three friends are running on a circular path in the same direction, and the total track length is 36 kilometer. Means they have to travel 36 kilometer. They have to travel 36 kilometer with speeds of 5 kilometer per hour, with speeds of 5 kilometer per hour, then 7 kilometer per hour and 11 kilometer per hour. Three friends A, B, C starts walking around a circular path in the same direction whose circumference is 36 kilometer with speeds of 5 kilometer per hour, 7 kilometer per hour and 11 kilometer per hour. Then how much time they will meet for the first time at the starting point. For the first time, मतलब जहां से स्टार्ट हो रहे आप वहां पर कब मिल रहे, और फॉर द फर्स्ट टाइम कहां मिल रहे, जनरल है ये तो. एंड सेकेंड इज एट द स्टार्टिंग पॉइंट. मैं आपको बोला था अगर से दो रहने दो, तीन रहने दो, चार पार्टिसिपेंट्स रहने दो, meeting at the starting point is very easy. What you have to do is you have to get the LCM. You have to get the LCM. So now we have to get the LCM of all the time period. Here distance is given, speed is given, so easily you can find the time. So time for A is 36 by 5, time for B is 36 by 7, time for C is 36 by 11. Time for C is 36 by 11. Now you have to get the LCM of these fractions. So how to get the LCM of fraction? General LCM, general numbers LCM you can find. But for the fractions, what you have to do? You have to get the LCM of numerator first. So numerators are 36, 36 and 36. Therefore LCM of numerator is definitely 36. Then what you have to do? You have to get the HCF of denominator. SCF means that number, that highest number with which you can divide all the three. So the common number is 1. With only 1 you can divide all these three. So 36 by 1 is the LCM of this fraction. So 36 is the LCM. So after 36 hours, they are going to meet at the starting point. They are going to meet at the starting point. Now the next thing is, this is very important, please zara carefully suno. Now for the first time, where the three participants are meeting, means A, B, C are starting from here. A, B and C are starting from here. So let here B and C are meeting. Again here A and C are meeting. So when they are going to meet together, that is A, B and C. A, B and C, that you have to find out. तो वहां तो बहुत इजी है, जब दो पार्टिसिपेंट्स रहते हैं, डिस्टेंस बाय रिलेटिव वेलोसिटी. But when three participants are there, what you have to do is you have to take one participant as common.
then it will be easy. So one participant I will take common as B. In A, B, C, I will take B as common. Now you have to find B and C where they are meeting. They are in the same direction. So that meeting point of B and C is given by distance divided by relative speed. So distance is 36. Relative speed is speed of B is 11. Speed of C is 7. So 36 by 11 minus 7. So 9 hours. So B and C are meeting after 9 hours. So B and C are meeting after 9 hours. Now we shall calculate for A and B. So again, distance divided by relative speed. Distance is 36 common. So speed of A is 7, speed of B is 5, I think. Whatever it is, you take that. So 7 minus 5. So A and B are meeting after 18 hours. So if you take B as common, so B and A are meeting after 18 hours. B and C are meeting after 9 hours. So if you want to find when A, B, C are going to meet, you have to get the LCM of 18 and 9. So LCM of 18 and 9 is 18. Therefore, after 18 hours, all the three participants are meeting. After 18 hours, all the three participants are meeting. That is A, B, and C. That is A, B, and C are meeting after how many hours? 18 hours. Got it? So A and B are meeting after 18 hours. B and C are meeting after 9 hours. So LCM of these two, that is B is common here, is going to give you when the A, B, and C are meeting. When the A, B, and C are meeting. I hope this is clear to you. So the same problem we will do in the next question. Same solution. Got it? Idea? So shall I move for the next question? देखो एक बार आओ. If you have any doubts, you can tell. Okay, I will go for the next question now. Three friends A, B, and C starts walking around a circular path whose circumference is 36 kilometers. Oh, same problem it is. I think. We did it. Same is there. Okay, we shall go for the next one now. Okay, take down this question. Ram and Sham start running on a circular track from the same point. Ram and Sham start running on a circular track from the same point. Two participants are there. Both are starting from the same point in the opposite direction. Remember, Ram and Sham start running on a circular track from the same point in the opposite direction. In the opposite direction. If the length of the track is 1800 meters, the length of the track is how much? 1800 meters, and their speeds are 40 meter per second and 50 meter per second respectively. The length of the track is how much? 1800 meters. The length of the track is 1800 meters and their speed of Ram is 40 meter per second and speed of Sham is 50 meter per second. Take down the question please. Find how many times they would have meet each other before meeting at the starting point. क्वेश्चन थोड़ा अलग है, लिख लो. ये थोड़े अलग अलग टाइप के करा रहा हूं मैं आज. थोड़ा डिफिकल्ट है, नॉट दैट मच डिफिकल्ट. Ram and Sham are starting and running on the same track in the opposite direction. That's first you should know. They are meeting of opposite direction. If the length of the track is 1800 meters,
If the length of the track is 1800 meters, total length of the track is 1800 meters, and their speeds are 40 meter per second and 50 meter per second respectively. Their speeds are 40 meter per second and 50 meter per second respectively. Find how many times they would have met each other before meeting at the starting point. देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि ये दोनों यहाँ से स्टार्ट हो रहे, आर से, राम इस तरफ जा रहा, श्याम इस तरफ जा रहा, तो इस तरफ जा तो कहीं ना कहीं मिलते होंगे, हमको वो प्रॉब्लम नहीं है। हमको प्रॉब्लम क्या है, वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट से मिलने से पहले आपस में कितने बार मिल रहे, वो लोग आपस में कितने बार मिल रहे, that you have to find. First to take out the question, I will do it. 9 times, 8 times, 10 times, 7 times. Can you do it please? Try it. कुछ सोचो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखो, Ram and Shyam start running on a circular track from the same point in the opposite direction. If the length of the track is 1800 meters, somebody did. Okay, Saurabh, I think it is right. If the length of the track is 1800 meter and their speeds are 40 meter per second and 50 meter per second respectively, find how many times they would have met each other before meeting at the starting point. Okay, so I will do it. Not that much difficult it is. You see here, this is a circular track. Ram and Shyam are moving from here at the starting point, but they are moving in the opposite direction. Ram is taraf ja raha, Shyam is taraf ja raha. Ram is going in this direction, Shyam is going in this direction. So after some time they will meet. We shall find that time first, and that time is given by relative velocity concept. Distance is 1800 divided by, as they are in the opposite direction, sum of their speeds. So 20 seconds means after 20 seconds they are going to meet each other. It means that after every 20 seconds they are meeting. After every 20 seconds Ram and Shyam are meeting. This is the clear. वो कहाँ मिल रहे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमको। अब हम ये निकालेंगे कि वो स्टार्टिंग पॉइंट में कितने देर बाद मिल रहे, और स्टार्टिंग पॉइंट में कितने देर बाद मिल रहे, इसको निकालने के लिए आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। अब देखिए, टाइम ऑफ ट्रैवल फॉर राम इज टोटल डिस्टेंस बाय स्पीड 45 सेकंड्स, मतलब एक ट्रैक राम को कंप्लीट करने के लिए 45 सेकंड लगेंगे। शाम को कितने लगेंगे, टोटल इज 1800 बाय 50, तो शाम को लगेगा 36। तो स्टार्टिंग पॉइंट में मिलने के लिए उनको कैसा निकालते हैं हम, दोनों का एलसीएम, ट्रैक स्पीड का, ट्रैक टाइम का, 45 और 36 का एलसीएम निकालो तो 180 सेकेंड मिलता। इसका मतलब वो स्टार्टिंग पॉइंट में 180 सेकेंड्स के बाद मिल रहे। They are meeting at the starting point after 180 seconds. Remember this. After 180 seconds, they are meeting at the starting point. At the starting point. But the thing is, if they are meeting after the starting point after 180 seconds, so first time after what time they are meeting? 20 seconds. Second time they will meet 40 seconds after. Then 60 seconds, 80 seconds. So to get 180 times, they have to meet 9 times. Yes, yes, very good. They have to meet 9 times. मतलब starting point में आने के लिए 180 सेकंड लग रहा, एक बार कहीं भी मिलने के लिए 20 सेकंड लिख रहा, तो उसको 180 सेकंड आने तक उनको 9 बार मिलना पड़ेगा। तो 9 times they will meet each other before meeting at the starting point. Before meeting at the starting point. Got it? Take down. कुछ डाउट है तो पूछो प्लीज। Any doubts? Today's questions are little bit, tricky type. Because concept is same. First time मिल रहे तो relative velocity के concept से निकालना, starting point पे मिलना है तो time of period निकाल के LCM निकालना।
ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसके बाद थोड़े बहुत प्रॉब्लम आगे पीछे घुमा के ट्रिक की दे सकता हो, ही कैन गिव यू। और टेकन एंड फ्यू थिंग्स आई वुड लाइक टू टेल यू। देखिए अटेंडेंस कंपलसरी, ये अटेंडेंस के लिए मत आओ, मतलब आओ लेकिन अटेंडेंस का उतना बड़ा इश्यू नहीं है। अब मैं मत आओ बोले तो आप लोग बोलेंगे कॉलेज वाले मुझे पकड़ते। द थिंग इज व्हाट आई वांट टू से हियर इज to learn something you have to come here. And what happens, what I am observing is some of you people are thinking अरे हमारा हम पढ़ेंगे, सर क्या पढ़ाते, उस वहाँ क्या रहता। सी इट्स टोटली रॉन्ग अजम्पशन। अब लोग अभी आप लोग इतने बड़े नहीं हो गए, इतने मैच्योर नहीं हो गए कि कोई चीज सही तरीका ढूंढ के कॉन्सेप्ट निकाल के उसके बहुत सारा मटेरियल, एक तो आप इतने डिस्टेंस प्लेस पे आपके पास मटेरियल भी नहीं है, तो मटेरियल भी नहीं है आपके पास, तो आप खुद कैसा करते। So when teacher is teaching you, please get benefited from you. At least I will tell you, you are not going to lose here anything. और आप इतने सिंसियर नहीं है कि एक टाइम टेबल पढ़ा के सुबह से शाम तक बैठ के पढ़ने वाले, just to waste the time. So when teacher is teaching, please attend the classes. What the concept he is telling, different problems I am giving you. तो बहुत से लोग क्या सोच रहे क्या करना है, और सब कुछ लोग क्या सोच रहे मेरे को यूपीएससी करना है, मेरे को ये करना है, मेरे को इसमें क्या जरूरत है, मैं ये क्यों पढूं। तो मैं आपको ये दो चीजें बताता हूं, जो गेट का प्रिपरेशन करेगा वो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिविल के उसको इजी हो जाएंगे। नोट करो, गेट आप कॉन्सेप्ट वाइज प्रिपरेशन करते तो आपको अपने आप प्रिपेयर हो जाता। सेकंड, एप्टीट्यूड के बारे में मैं बोलता हूं आपको, एप्टीट्यूड हर एग्जाम में हर जगह पूछा जा रहा। आपका एप्टीट्यूड जितना स्ट्रांग है, टेक्निकल नॉलेज से भी ज्यादा आपका एप्टीट्यूड सही होना। दिस इज ऑल माय एक्सपीरियंस। प्लीज आप सुनना है, फॉलो करना है करो, नहीं करना है आपके ऊपर है। Of course you make a aim. I'm not telling that you don't go for UPSC, you don't go for MPSC, you don't go for ISRO, don't go for बाबा। आपका इंटरेस्ट है, आपको कौन सा एग्जाम करना है, आपको उसका रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो सब आप बिल्कुल देखो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको मत करो। आपको यूपीएससी करना है तो ये जो जियोटेक वोटेक किसी काम को नहीं आएंगी। आप दूसरा ऑप्शन लेंगे, आप जियोलॉजी ऑप्शन लेते, पूरा करंट अफेयर्स रहता है, ऐसे लिखना रहता है, हैंडराइटिंग इंपॉर्टेंट करता, दैट इज डिफरेंट, उसको एम बनाओ आप। लेकिन उससे पहले आपको ग्रेजुएट बनना है, उससे पहले इंजीनियर बनना है आपको। तो आप देखिए 10 लाख लोग एग्जाम लिखते, उसमें से हार्डली 100 लोग आईएएस बनते। तो आप देखो प्रोबेबिलिटी कितना कम है। You cannot say that if you are preparing for UPSC 100% you will get through UPSC. तो आपको बैकअप प्लान रहना पड़ता। आप हर चीज सोच के मैं यूपीएससी करता हूँ क्योंकि 10 साल दिल्ली में रहेंगे, आपकी उम्र 35 हो जाएगी, बाद में ना आप घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। क्योंकि प्रोबेबिलिटी, ऐसे कैंडिडेट्स बताता हूँ मैं आपको, 6 बार इंटरव्यू तक गए लेकिन पोस्ट नहीं मिला। तो मतलब अनसर्टेनिटी बहुत रहता है, इसलिए आपके पास बैकअप प्लान रहना। और बैकअप प्लान मतलब आप सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, आपको सिविल के कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर रहना, और आपको ये एप्टीट्यूड जो है ये बहुत जरूरी है। ये आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, आप लोग अपने आप को होशियार समझ रहे हैं, सर क्या पढ़ाते हैं, क्या जरूरत है, अब मैं खुद पढ़ता हूँ, मैं यो करता हूँ, आपको डायरेक्शन ही नहीं है, आप कुछ भी पढ़ रहे, कौन सा भी बुक लेते, कौन से भी नोट्स लेते, कहीं कुछ सुनते हैं वीडियो में, तो ऐसा नहीं होता। ये गेट का एग्जाम तो आपको सिर्फ ट्रायल के लिए देना है, आपको पूरा मालूम होना है सिलेबस कैसा रहता, पैटर्न कैसा रहता, और इस बार आप क्लिक करना ही है, ये सोच के करे सीरियसली तो सही होता। तो ये मेरा एडवाइस है आपको, इसके बाद आपके ऊपर है। आई एम टेकिंग एफर्ट्स, आपको एप्टीट्यूड कितना हो सके उतना लेवल को मैं करा दूं, जितने भी पीरियड्स मिल रहे हैं। तो प्लीज प्लीज अटेंड क्लासेस, और दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू बेनिफिट यू। एटलीस्ट यहाँ बैठ के आप प्रैक्टिस तो करो, इतना सीरियसली आप अलग से नहीं कर सकते। यहाँ कॉम्पिटिशन रहता, एक मैं बताते जाता हूँ, आप करते जाते तो इजी होता आपको। इट्स अप टू यू। और बहुत सारे देखिए, ये नहीं बोल रहा कि मैं आपसे बहुत अच्छा हूँ या मैं बहुत अच्छा टीचर हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट हैपेंस नो, मैं आपसे सीख सकता हूँ कभी कभी। ऐसा नहीं होता कि सब कुछ मुझे ही आता है। मेरी टाइम्स, दिस इज माय टीचिंग एक्सपीरियंस, आई विल टेल यू, मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स इतने फास्ट रहते, कभी कभी मैं एक मेथड करे सो दूसरे अलग मेथड से करता, तो आई विल लर्न फ्रॉम द स्टूडेंट्स। सो लर्निंग इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, इसको कोई एज नहीं है। आप मैं टीचर हूँ बोल तो मैं आपसे बड़ा नहीं हूँ, आप मेरे स्टूडेंट हो तो आप मुझसे छोटे नहीं है, आप मुझसे तेज है, मुझसे फास्ट है। आपको बहुत से कंप्यूटर की चीजें हैं, मैं इसको आप देखते मैं कितना मतलब प्रॉब्लम होता, मुझे कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है, जबकि आप परफेक्ट है। बहुत सी चीजें मुझे मैं आपसे सीखता हूँ।
तो इसमें सीखने में कोई गलत नहीं रहता। आप ये दिमाग में मत रखो कि सर क्या पढ़ाते हैं, मेरे को सब आता, ऐसा ये दिमाग में से निकालो। जब व्हेन आई कैन थिंक दैट आई कैन लर्न फ्रॉम यू पीपल, मैं तो आप जब आप पैदा भी नहीं होते तब से पढ़ा रहा हूं मैं, तो समथिंग आई नो इट। So please attend the classes, make a timetable, follow it, and please first you prepare for the GATE exam. Then you think of UPSC. UPSC करो, आप IAS बनो, IPS बनो, मैं नहीं बोल रहा आपको, I am not demoralizing you, but at third year point you have to prepare concepts. और एक ही एग्जाम नहीं देना है आपको, बहुत सारे एग्जाम्स रहते हैं, आपको कहीं ना देके कहीं ना कहीं क्लिक करना है। तो as a civil engineering basic graduate, you should have knowledge of civil engineering, and second thing is aptitude is everywhere. So मैं जो भी बातें बोलता हूँ प्लीज सुनो जरा थोड़ा। Now take down this one. A and B run 5 kilometer race around a course of 400 meter. A and B रन 5 किलोमीटर रेस, मतलब रेस 5 किलोमीटर का है, अराउंड अ कोर्स ऑफ 500 मीटर, मतलब लेंथ ऑफ द ट्रैक 400 मीटर ही है, मतलब वो चक्कर लगा रहे हैं 400 मीटर, मतलब 4000, तो उसको कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं हम बाद में सोचेंगे। तो आपको रेस 5000 मीटर का है, 5 किलोमीटर का है, लेकिन लेंथ कितना है उसका, कोर्स का सिर्फ 400 मीटर है। इफ देयर स्पीड्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:4, उन दोनों का स्पीड जो रेशियो है वो 5:4 है, देन द नंबर ऑफ टाइम्स द विनर passes the other is 2 times, 3 times, 4 times, 1 time. देखिए एक का स्पीड 5 है, एक का स्पीड 4 है, उनका रेशियो 5:4 है। ट्रैक 400 मीटर का है, रेस 5000 मीटर का है। तो ये जब आपस में मतलब रन कर रहे, तो आपको क्या बताना है, कितने बार विनर जो है लूजर को मीट करेगा जीतने से पहले। जीतने से पहले मतलब 5000 मीटर रीच होने से पहले वो दोनों भी कितने बार मिलेंगे आपस में। एक और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर डायरेक्शन नहीं दिया, ये उसकी गलती है, लेकिन अगर से नहीं दिया तो आप याद रखो एग्जाम में हमेशा आप सेम डायरेक्शन मान के चलो। दैट इज द assumption generally assumed. That is the assumption you have to make it. Okay? देखिए ऑप्शन है 2 times, 3 times, 4 times and 1 time. 2 times, 3 times, 4 times and 1 time. Today I will complete this topic and start percentages. हाँ देखिए ये 400 मीटर का रेस है, ये और भी यहाँ से स्टार्ट हो रहे, दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे, दोनों का रेशियो कितना है 5:4 है, मतलब स्पीड ए का अगर से 5 है तो बी का कितना बनेगा 4। हाँ? तो उनके स्पीड 5:4 है। देखिए स्पीड और डिस्टेंस जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर से उनके स्पीड 5:4 है तो उनका डिस्टेंस भी 5:4 के रेशियो में ही रहेगा, 5:4 के रेशियो ही में ही रहेगा। मतलब अगर से 400 मीटर का ये ट्रैक है, ये ट्रैक है 400 मीटर का, 5:4 का डिस्टेंस है, मतलब ये 5 भागने तक ये कितना भागता, 4 भागता, मतलब ये 2000 भागने तक ये कितना भागता, 1000 भागता। समझ में आ रहा आपको? ये 2000 भागने तक ये 1600 भागता, तो टोटल रेस कितने का है 5000 का है। तो देखिए ये 2000 भागने तक ये 1600 भागा, ये 2000 फिर भागने तक ये भी 1600 भागा, मतलब ये 1000 भागने तक ये 800 भागा, मतलब ये 5000 कंप्लीट करने तक इसका कितना हुआ, इसका कितना हुआ वो आपको निकालना है। ये कितने बार भाग सकता ये आपको निकालना है। सोचो प्लीज, सोच के बोलो मुझे क्वेश्चन क्या पूछ रहा, जरा समझो, करना है, मुश्किल नहीं है। ये क्या बोल रहा है, ए एंड बी रन 5 किलोमीटर रेस, रेस 500 किलोमीटर का है, किलोमीटर है उसको मीटर में निकालना है हमको। तो ये रेस जो 5000 मीटर का है, लेकिन ट्रैक जो है वो 400 मीटर का है, और उनके रेशियोज 5:4 है, तो रेशियो 5:4 है, स्पीड के है, तो डिस्टेंस भी 5:4 ही होते, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस और स्पीड।
तो आपको क्या निकालना है यहां पर कि जो जीत रहा रेस, जिसका स्पीड ज्यादा है वो जीतेगा, जिसका रेस जीतेगा तो वो कितने बार जो लूजर है उसको पास करेगा, वो कितने बार लूजर को पास करेगा। The number of times the winner passes the other. Yes, please. Yes, anybody? समझ में आया क्या आपको? सॉल्यूशन भी मैं सामने दिया। ओके सोनाली, यू गॉट इट, वेदर यू अंडरस्टूड इट। ये मैं आपको अभी, आप भी सोचो जरा, मैं आपको और एक तरीके से बताता हूं। आपको इस तरीके से भी आपको हिंट दिया। यहाँ देखिए, ये 5 किलोमीटर भागता तो बी कितने किलोमीटर भागता? ये 5 किलोमीटर भागने तक बी कितने किलोमीटर भागता? 4 किलोमीटर भागता, क्योंकि उनका रेशियो 5:4 है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होता? 1 किलोमीटर। और 1 किलोमीटर करने के लिए उसको ट्रैक कितने का है? 400 का। तो 2.5 टाइम्स पास करता। लेकिन 2.5 टाइम्स ऐसा हो सकता क्या? या तो 2 टाइम्स हो सकता, 3 टाइम्स हो सकता, 4 टाइम्स हो सकता। इसीलिए 2 टाइम्स ही वो पास करता, वो 2 टाइम्स ही पास करता, या नहीं? तो 5000 के रेस में देखिए, ये जब 2000 पहुंचता तो ये 1600 खत्म करता, ये 2000 खत्म करता, फिर 1600 खत्म कर रहा, तो बचे 1000 में तो ये कितने बार, तो कितना कहां पर रहा? तो या तो ऐसा करो या ऐसा करो, इसके बारे में आप सोचो, खुद सोचो तो आपको अच्छा रहता। क्वेश्चन दिया हूं, थोड़ा हिंट भी दिया हूं, फिर भी आपको नहीं समझ में आता तो मैं नेक्स्ट क्लास में समझाता हूं। हर चीज मैं पूरा समझाया तो भी आपको समझ में नहीं आता। व्हाट आई वांट इज देयर इज सम स्ट्रेन फॉर योर माइंड। क्वेश्चन लिख लो, ऑप्शंस लिख लो, हिंट भी दिया हूं मैं आपको। देखिए, दोनों का स्पीड 5:4 में है, तो डिस्टेंस भी 5:4 में रहेगा, मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस रहेगा 1 का। ये 5 भाजे जब ये 4 भागता तो ऐसा रहेगा। तो उस हिसाब से मैं यहां पर करके रखा हूं। तो प्लीज यहां सब सॉल्यूशन है, आप देख के लिख लो और समझो खुद, नहीं तो मैं तो समझाता हूं, हर चीज सिंपल है। तो आंसर है 2 टाइम्स। इसके बारे में सोचो प्लीज। आई विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। सोचो जरा, दिमाग पे जोर लगाओ, हर चीज मैं ही नहीं करता। ओके, नाउ टेक डाउन दिस वन। आज के क्वेश्चन थोड़े मतलब बेसिक ही है, थोड़े डिफिकल्ट है, और यही गेट के क्वेश्चन से लाया हूं मैं आज। गेट के और ये सर्विसेज के। A, B and C walk 1 kilometer in 5 minutes. A, B and C walk 1 kilometer in 5 minutes, 8 minutes, 10 minutes respectively. मतलब A 1 किलोमीटर 5 मिनट्स में खत्म कर रहा, B 8 मिनट्स में खत्म कर रहा, C 10 मिनट्स में खत्म कर रहा। C starts walking from a point at certain time. तो सबसे पहले स्टार्ट कौन हो गया? C स्टार्ट हो गया, एक सर्टन पॉइंट से स्टार्ट करा। B also starts from the same point 1 meter later, मतलब B भी C जहां से स्टार्ट कर रहा वहीं से स्टार्ट कर रहा, लेकिन 1 मिनट बाद। एंड A starts from the same points 2 minutes later than C. एंड ए स्टार्ट्स, ए भी उसी पॉइंट से स्टार्ट करता लेकिन 2 मिनट के बाद। देन ए मीट्स बी एंड सी एट व्हाट टाइम्स? ए बी को कब मिलता और सी को कब मिलता? आंसर है 2 मिनट 3 मिनट, 4/3 मिनट 3 मिनट, 5/3 मिनट 2 मिनट, 1 मिनट 2 मिनट। क्वेश्चन समझो, सॉल्यूशन देखो, मैं करे तो कुछ भी नहीं है, आप 1 सेकंड में अरे इतना ही है ऐसा लगता। मैं पूरा नहीं बताना चाहता आपको, आप थोड़ा दांत से चबाओ, क्वेश्चन समझो आप। ए बी एंड सी है और 1 किलोमीटर का डिस्टेंस, मतलब आपको स्पीड मिल जाते सबकी। ए का स्पीड मिलता, बी का स्पीड मिल सकता, 3 का, क्योंकि ये बी एंड सी वॉक 1 किलोमीटर इन 5 मिनट्स, 8 मिनट्स एंड 10 मिनट्स रेस्पेक्टिवली।
A, B and C walk 1 kilometer in 5 minutes, 8 minutes and 10 minutes respectively. C starts walking from a point at certain time. C starts walking from a point at certain time. मतलब C कहीं से स्टार्ट कर रहा, B भी वहीं से स्टार्ट कर रहा, A भी वहीं से स्टार्ट कर रहा, लेकिन C जाने के 1 मिनट के बाद B जा रहा, निकल रहा, और मतलब यहाँ पर स्टार्ट ऑफ टाइम दिए सो है, और A वहीं से 2 मिनट के बाद निकल रहा। तो आपको क्या करना है कि ये B को कब मिलता और C को कब मिलता। ऑप्शन है 2, 3, 4/3, 3, 5/3, 2 एंड 1 मिनट, 2 मिनट। देखिए यहाँ पर फिगर भी बनाया हूं मैं आपको। ये बी सी यहीं से स्टार्ट हो रहे, सेम डायरेक्शन में है, तो पहले तो सी निकलता, उसके बाद बी 1 मिनट के बाद निकलता, उसके बाद ए 2 मिनट के बाद निकलता, उसके बाद ए 2 मिनट के बाद निकलता। तो क्वेश्चन अच्छी तरह समझो, ये करना कुछ भी नहीं है, समझ के हो जाता। अगर से जल्दी समझ में आया तो एक फटाक से हो जाता है। ठीक है, ए बी सी स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट। अच्छा पहले हम देखिए, ये को 1 किलोमीटर करने के लिए कितने मिनट लगते हैं, 5 मिनट। बी को 1 किलोमीटर करने में 8 मिनट, और सी को 1 किलोमीटर ट्रैवल करने में 10 मिनट। ये तो आपको दिए सो है। अब मुझे ये बोलो 1 मिनट में ए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता, 200 मीटर। देखिए 5 मिनट को 1 किलोमीटर मतलब 1 मिनट में 200 मीटर। बी को 1 मिनट में 125 मीटर, isn't it? बी को 8 मिनट में 1 किलोमीटर है, तो 1 मिनट में 125 मीटर, और सी को 1 मिनट में 100 मीटर। मतलब ए 1 मिनट में 200 मीटर, बी 1 मिनट में 125 मीटर, और सी 1 मिनट में 100 मीटर। इस तरह ट्राई करते एक एक मिनट में। अब देखिए यहां पर आपको क्या करना है, देखिए ये यहां से सी यहां से निकला, पहले यहां तक आ गया, यहां तक आया, और इसके 1 मिनट बाद बी निकला, बी यहां पर आया, और ये तो यही है दो, मतलब ये से पहले सी 2 मिनट पहले आया और बी 1 मिनट पहले आया। तो बी 1 मिनट पहले आया, मतलब 1 मिनट में बी कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा, 125 मीटर। सो बी इज ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 125 मीटर। और सी कितना ट्रैवल कर रहा, सी 1 मिनट में 100 मीटर कर रहा, तो सी यहां से यहां आने तक 200 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा। ये आपको मालूम हो रहा क्या, क्वेश्चन बहुत इजी है। 1 मिनट में ये कितना ट्रैवल कर रहा, बी कितना ट्रैवल कर रहा, सी कितना ट्रैवल कर रहा। तो सी सबसे पहले 2 मिनट्स निकला, यहां पर आया, उसके बाद बी निकला और ये वहीं पर है, तो 2 मिनट का निकाल रहे हैं हम सिर्फ। 2 मिनट में क्या क्या हुआ, 2 मिनट में सी 200 मीटर आया, और जब 2 मिनट को सी यहां आया तो यहां पर बी था, क्योंकि बी तो 1 मिनट के बाद निकला, और बी 125 मीटर आया। अब मुझे ये निकालना है कि ये बी को कब मिलता, तो ए बी को कब मिलता, दोनों सेम डायरेक्शन में है। मैं आपको क्या बोला था, डिस्टेंस लेना है दोनों के बीच में 125 मीटर, रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है दोनों का। तो 200 माइनस 125 करके यहाँ पर 5/3 मिनट्स, तो ये मिल रहा बी को 5/3 मिनट्स के बाद, और ए मिल रहा सी को, क्योंकि ए और सी के बीच में डिस्टेंस 200 है और इनका स्पीड का डिफरेंस 200 माइनस 100 है। तो यहां पर 200 माइनस डिस्टेंस है लेकिन स्पीड ही है, क्योंकि 1 मिनट का है ना, इसलिए स्पीड भी ले सकते हैं आप इसको। सो ए बी को 5/3 मिनट्स के बाद मिल रहा, ये सी को 2 मिनट्स के बाद मिल रहा। तो ऑप्शन सी इज राइट। प्लीज ये समझ में आया क्या नहीं, देखो इसके बाद 2 मिनट का ब्रेक ले लो, ब्रेक में सोचो, ये क्वेश्चन लिख लो। आप पता नहीं लिख रहे क्या नहीं, सिर्फ सुन रहे, ये आपके ऊपर है। तो किसमें क्या कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे ब्रेक के बाद पूछो।